Good morning to all my dear students. I welcome you in the class of Accounts Standard 11. We are continuing with our fifth chapter, that is Financial Statements of Business Organizations, Final Accounts. My dear students, I have completed the theory portion and moving on to the practical question, that is first question of your textbook, question number 6 on page number 191. Before I start with the practical question, let us revise the three components of final accounts: trading account, P&L account, and balance sheet. Trading account, all the accounts, all the items, all the balances related to your goods are to be recorded. All the incomes and gains are to be recorded in profit and loss account. All the assets, tangible, intangible, current investments are on the asset side of balance sheet. Capital, drawings, interest on capital, interest on drawings, and all the current liabilities are on the liability side, that is left hand side of your balance sheet. Let us revise one more thing, that all the debit balance of credit, all the debit balance of your trial balance will have the debit effect either in trading account or in profit and loss account or in balance sheet, and all the credit balances of trial balance will have the credit effect either in trading account or in profit and loss account or in balance sheet. One more thing to be revised and recalled is trial balance has single effect, same side. Adjustment has dual effect, one debit, one credit. Okay, now let us start. We are on the very first practical question of your final accounts. That is question number 6 on your page number 191 of textbook. What it says and how we are supposed to start with the sum. Let us please concentrate on the question first. Prepare final accounts from trial balance and adjustments of Deepak as on 31/3/2015. So my dear students, this is the trial balance which is tallied 19,19,000. It is on the both the sides, debit and credit. Fine. Now, how we are supposed to start up with the sum? Here are 4 given adjustments. These adjustments first are to be read, और वो कहां किसको कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेंगे उस पे हमें टिक मार्क करना होगा. द वेरी फर्स्ट इज goods of 12,000 lost due to theft. Many times during journal entries also I have said you, goods going out other than sales are purchases. हमें purchases में से क्या करना होगा? डिडक्ट करना होगा. ये goods हमने बेचे नहीं हैं पर बाहर जा रहे हैं theft की वजह से. So we will tick mark on purchase. Fine. On second adjustment, what it is? Goods of 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल. हमने सैंपल के तौर पे 15,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. अगेन गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, परचेज पे टिक करना होगा हमें. नेक्स्ट नंबर थर्ड, गुड्स ऑफ 16,000 बर्न्ड बाय फायर. ये भी गुड्स से रिलेटेड है और गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स है, इसके लिए वापस से उसी पे टिक मार्क आएगा. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 1,500 गिवन एज चैरिटी. वापस से हमने डोनेशन किया है गुड्स का 1,500 का. अगेन इट विल बी ऑन परचेज अकाउंट. सो इन ऑल 4 एडजस्टमेंट्स जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो ऑल 4 कौन सी हैं? आपके परचेज से रिलेटेड. नाउ वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द सम बाय फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग all the balances of our trial balance. This is very well clear to you all till now that all the debit balance of trial balance will have the debit effect either in trading account or P&L account or balance sheet asset side.
all the credit balances will have a single effect on credit side of trading account, P&L account or balance sheet. Fine. This is also very well said to you people earlier as well. Trial balance will have a single effect, same side, means ये सारे जो डेबिट आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबका डेबिट इफेक्ट ही होगा. All the credit effects will have the credit effect, means trial balance has single effect and adjustments have dual effect. One is debit and one is credit. Fine. Adjustments के one debit and one credit effect हमें करने होंगे, जबकि ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट ऑन सेम साइड. ये सिंगल इफेक्ट मींस 18,000 एक बार लिख दिया तो हमें एक ही बार लिखना होगा. नाउ आफ्टर टिक मार्किंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स, हमें क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस की आइटम से शुरुआत करना होगा. जो अकाउंट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और वो अकाउंट का बैलेंस किसमें जाएगा फाइनल अकाउंट्स में, उसके हिसाब से हमें काम करना होगा. सो वी विल स्टार्ट विद द credit side first. Before starting the sum, I would like to show you the format like which we are supposed to draw and even the specimens we have drawn. What I have written, trading account of Deepak for the month, for the year ending on 31/3/2015, particulars amount debit and credit. This is your trading account. In the very same particular manner, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है. P&L account of Deepak for the year ending on 31/3/2015, debit and credit. Likewise, I have told you that बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना होगा, वही फॉर्मेट के हिसाब से हमें काम करना है. बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2015. असेट साइड अपन देखेंगे तो फिक्स्ड असेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड करंट असेट्स हैं. ऑन द लायबिलिटी साइड इफ विल चेक इट आउट, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से हमें सम की स्टार्टिंग करनी है. नाउ अब तक आपको पता चल ही गया होगा व्हाट इट इज गिवन टू यू, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. यहां पे कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों दिया हुआ है. सो डेबिट इफेक्ट कौन सा होगा, क्रेडिट इफेक्ट कौन से अकाउंट को होगा, दिस यू आर सपोज टू चेक इट आउट. बट ऑब्वियस है ड्रॉइंग्स को डेबिट होता है एंड कैपिटल को क्रेडिट होता है. सो फर्स्ट लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दी क्रेडिट बैलेंसेस. कैपिटल कहां आएगा आपके बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में. फर्स्ट आइटम कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज, तो हमें ये इनर कॉलम में 3 लाख रुपीज लिखना होगा. ट्रायल बैलेंस विल हैव दी सिंगल इफेक्ट. नेक्स्ट इट इज परचेज एंड सेल्स. Purchase will always have the debit balance and sales will always have the credit balance. तो हमें कौन सा लेना है, 1291,000. In my video of theory, I have taught you that आपका गुड्स से रिलेटेड जो भी आइटम है वो हमें कहां लिखना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे आप लिखेंगे बाय सेल्स how much, 1291,000. Fine. Further it is next discount. Now डिस्काउंट में आपको दोनों में बैलेंसेस दिए हुए हैं. सो योर डेबिट बैलेंस विल बी डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट विल बी योर डिस्काउंट रिसीव्ड. तो आपको रिसीव्ड का एंट्री अभी करना है. रिसीव्ड का अभी आप करेंगे, दैट मीन्स by it will be your P&L account by discount received how much, 8,000. is this clear? वो हमारी इनकम है, इसके लिए हम उसको वहां रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट इज डेटर्स और क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स विल बी 90,000. बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में शो करना होगा. फाइन. करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स ऑफ 90,000. इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्या है 90,000 के बाद, बिल्स है.
बोथ दी बिल्स आर गिवन टू यू, 20,000 भी है डेबिट में, क्रेडिट में 30,000 है। सो डेबिट वाले होंगे कौन से, बिल्स रिसीवेबल, और ये होगा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल वापस से हमारे करंट लायबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स के नीचे हम लिख देंगे बिल्स पेएबल, हाउ मच, 30,000। इन सबको अपन को कितने इफेक्ट्स देने हैं, सिंगल इफेक्ट। नेक्स्ट इज 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। अभी आपको डिसाइड करना होगा कि 2 लाख जो है वो बैंक लोन होगा कि बैंक इंटरेस्ट होगा, 20,000 जो है वो बैंक लोन होगा कि इंटरेस्ट होगा। बट ऑब्वियस है कि 2 लाख रुपीज जो है वो तुम्हारा क्या होगा, 10% बैंक लोन। बैंक लोन विल बी इन योर नॉन करंट लायबिलिटीज। सो हम यहां पे दिखाएंगे 10% बैंक लोन, 2 लाख रुपीज, फाइन। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, ओके, सारे हमारे क्रेडिट्स खत्म हो गए हैं। नाउ अगेन कमिंग ऑन टू दी डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम देख रहे हैं तो कौन सा है, 18,000 तुम्हारा क्या है, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स आपका कहां आता है, ड्राइंग्स आपका लेस होता है कैपिटल में से। कैपिटल में से जितने भी तुम्हारे ड्राइंग्स होंगे उन्हें हमें डिडक्ट करना है, एंड ड्राइंग्स आर ऑफ 18,000, फाइन। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्या है, 8 लाख आपका परचेजेस का है, और परचेजेस पे 1 2 3 4 एडजस्टमेंट्स गिवन है। हमें परचेजेस गुड्स से रिलेटेड है, इसके लिए कहां दिखाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, टू परचेज 8 लाख, फाइन। अब इसके ऊपर क्या आया है, एडजस्टमेंट। हम 1 बाय 1 ऑल एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे। गुड्स 12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। गुड्स अपन के क्या हो गए हैं, चोरी की वजह से कम हो गए हैं, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, इसमें से माइनस गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। कितने के गुड्स अपन के चले गए हैं, 12,000 के। 12,000 के अपन क्या कर देंगे, माइनस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस ऑन दिस एरिया, व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। डेबिट में से आपने क्या किया है, माइनस। डेबिट में से माइनस इंडिकेट्स दैट यू हैव गिवन दी क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट अपन ने दे दिया है। एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। डेबिट में से माइनस मीन्स क्रेडिट, एक इफेक्ट अपन का डन है। एक और इफेक्ट आएगा, दैट विल बी इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइन। यहां पर आपको दिखाना होगा टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट। कितने से अपन का नुकसान हो गया है, 12,000। सो बाय दिस एडजस्टमेंट के हमने ड्यूअल इफेक्ट कंप्लीट किए। हमने क्या किया, एक डेबिट इफेक्ट और ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस, दैट इज क्रेडिट इफेक्ट। इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, वो भी वैसा ही है, समझ में आ जाएगा। गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। हमने 15,000 के गुड्स क्या किए हैं, सैंपल में दिए हैं। इसको भी अपन क्या करेंगे, परचेज में से लेस। क्यों परचेज में से लेस, बिकॉज गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल से, इसके लिए परचेज ट्रीट करके माइनस करेंगे। गुड्स गिवन एज सैंपल। कितने के गुड्स अपन ने दे दिए हैं, 15,000 के। आई विल रिपीट इट अगेन, डेबिट में से माइनस मीन्स क्रेडिट। सिमिलरली अगर कोई एडजस्टमेंट यहां पर आएगा तो क्रेडिट में से माइनस, यस यू आर करेक्ट, डेबिट। जैसे यहां पे डेबिट में से माइनस क्रेडिट मानते हैं, क्रेडिट में से माइनस करोगे तो डेबिट मानेंगे। और इफ यू आर एडिंग ऑन डेबिट साइड, डेबिट में ही आप ऐड कर रहे हैं तो बट नेचुरल है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट में प्लस कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट। इज दिस क्लियर? हमने 15,000 का एक इफेक्ट दे दिया है, बताओ कौन सा इफेक्ट है वो, क्रेडिट इफेक्ट। यस, अभी हमें क्या करना है, डेबिट इफेक्ट देना है। कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में टू गिवन गुड्स गिवन एज चैरिटी, गिवन एज सैंपल्स, सॉरी, टू गुड्स गिवन एज सैंपल, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करके भी आप दिखा सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इसको आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी मान सकते हो। फाइन, अगेन टू एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स डन है। गुड्स ऑफ 16,000 बर्न्ड बाय फायर, हमारे गुड्स क्या हो गए हैं, जल गए हैं। वापस से क्या है ये, गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स। डेबिट में से क्या करेंगे, परचेज में से हम माइनस गुड्स बर्न्ड बाय फायर, कितने के गुड्स जल गए हैं, 16,000 से। अगेन द स्टोरी गोज द सेम, डेबिट में से माइनस क्रेडिट, एक क्रेडिट इफेक्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, एंड द सेकेंड इफेक्ट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट, टू लॉस ड्यू टू फायर, कितना, 16,000, 16,000 के अपन के गुड्स क्या हो गए हैं, जल गए हैं। अगेन ड्यूअल इफेक्ट्स कंप्लीटेड, यहां पे डेबिट कर दिया अपन ने इसको। वन मोर इज देयर, गुड्स ऑफ 1500 गिवन एज चैरिटी, हमने दान में, डोनेशन में 1500 के गुड्स दिए हैं। अगेन गुड्स गोइंग आउट अदर देन क्या है, सेल्स है। परचेज में से क्या करेंगे, माइनस गुड्स गिवन इन चैरिटी, कितने के गुड्स अपन ने गिवन किए हैं, 1500 के। फाइन, 1500 के गुड्स, डेबिट में से माइनस क्रेडिट इफेक्ट डन है। अभी अपन को क्या करना है, पीएनएल में दिखाना है, टू चैरिटी एक्सपेंस, डोनेशन एक्सपेंस लिख सकते हैं, टू चैरिटी एक्सपेंस ऑफ 1500। फाइन, ऐसे करके हमारे ये परचेज पे जो 4 टिक्स अपन ने लगाए थे, वो एडजस्टमेंट्स के सारे ड्यूअल इफेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। गुड्स रिटर्न डेबिट, परचेज इज योर डेबिट, सेल्स इज योर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न विल बी योर डेबिट, बिकॉज जो आपने गुड्स बेचे थे वो वापस आ रहे हैं। डेबिट रूल याद है आपको, कौन सा रूल लगाएंगे यहां पे, गुड्स से रिलेटेड है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए ये क्या है आपका, सेल्स रिटर्न। सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट साइड शो करना है, और सेल्स रिटर्न को क्या करना है, इसमें से माइनस सेल्स रिटर्न ऑफ 50,000। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, ये हमारे ट्रायल बैलेंस की आइटम है, इसके लिए सिंगल इफेक्ट। फाइन, नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट, डेबिट साइड दिया हुआ है, पीएनएल में डेबिट साइड तुम्हारा एक्सपेंस, टू डिस्काउंट अलाउड, कितना, इट इज ऑफ 6,000। फाइन, next is rent 7,000, that is also on the debit side, so हमें यहाँ पे expense मान के P&L में लिखना है to rent by how much it is, 7,000. Fine, is this clear? Next our debit balance is debtors 1,10,000 के हैं। debtors हमारे assets होते हैं, उन्हें हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में करंट असेट्स में लिखेंगे डेटर्स। फाइन, सबको डेबिट इफेक्ट देना है, ट्रायल बैलेंस है, सिंगल इफेक्ट आएगा 1,10,000। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज कमीशन, कमीशन अपन ने दिया है 8,000। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट टू कमीशन by 8,000 rupees. फाइन, नेक्स्ट इज बिल्स, ये बिल्स हमारे रिसीवेबल्स हैं 20,000, इट विल कम इन द बैलेंस शीट। करंट असेट्स में
आएगा बिल्स रिसीवेबल बाय 20,000 रुपीज. नेक्स्ट इज योर कैश बैलेंस 20,000, बैंक बैलेंस 90,000. दोनों हमारे बैलेंस शीट के करंट असेट्स के आइटम हैं. दोनों को लिखते हैं कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. बाय कैश बैलेंस इज बाय 20,000 and bank balance by 90,000 rupees. Next is building. Building is by 150. हमें यहाँ पे building करके 1,50,000 लिखना है. Next is our furniture. Furniture is of 40,000 rupees. Fine. नाउ नेक्स्ट इज मशीनरी. ये सारे हमारे फिक्स्ड असेट्स माने जाते हैं. हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स में इन सबको लिखना है. मशीनरी इज ऑफ 3 lakhs. फाइन. एंड ईच एंड एवरी वन विल हैव दी सिंगल इफेक्ट. वेजेस. वेजेस हमारे किसके हैं? ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं. हमें कहां पे दिखाना होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू वेजेस. वेजेस कितने हैं? 60,000. फाइन. नेक्स्ट इज कैरिएज इनवर्ड. कैरिएज इनवर्ड अगर आता है तो ये आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैरिएज आउटवर्ड अगर आएगा तो दैट विल बी योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, यहां पे दोनों बातें दी हुई हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ये हमारा बैंक लोन था और उसी लोन के ऊपर लगाया जाने वाला ये बैंक का इंटरेस्ट है. दिस विल बी इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइन. To interest on loan 20,000. Next is closing stock. Closing stock आपका बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा. असेट साइड में आपका करंट असेट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जनरली आपको एडजस्टमेंट गिवन होगा, और जैसे ही एडजस्टमेंट गिवन होगा तो उसके ड्यूअल इफेक्ट्स आएंगे. ड्यूअल इफेक्ट्स में एक होगा आपका ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और एक होगा आपका करंट असेट्स में. इफ इट इज ओनली इन ट्रायल बैलेंस, सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, डेबिट इफेक्ट है, तो हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, असेट्स में, करंट असेट्स. फाइन. नाउ लास्ट इज ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे. ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं आपके? 1,20,000. हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो यहां पे फॉर्मेट है वो आप डिस्टर्ब कर देंगे तो चलेगा. आपका बैलेंस शीट में एज इट इज जो आइटम के अंडर में जो अकाउंट्स आते हैं उन्हें ही हमें लिखना होगा. ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफ 1,20,000. After the completion of all the adjustments, after giving all the single effects of trial balance, अभी टाइम है हमारा क्लोजिंग का. बिफोर क्लोजिंग हम देखेंगे यहां पे, दैट इज ट्रेडिंग में आपका सेल्स का टोटल का बाहर निकालना बाकी है. 1291,000 माइनस 50,000 आप करेंगे तो आएगा 1241,000. फाइन. उसको कहां लिखना है? ये 50,000 के एग्जैक्ट सामने. और अभी आपका ये परचेजेस का भी टोटल बाहर निकालना आउटर कॉलम में बाकी है. 8 लाख माइनस ऑल दीज विल कम टू 7,555,000. इज दिस ओके? ऐसे ही आपको P&L में चेक करना होगा. कुछ भी आउटर कॉलम में बाहर निकालने का बाकी होगा इवन इन योर बैलेंस शीट, तो वो हम पहले कर देंगे. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरीथिंग हमें अभी क्या करना है? टोटल करना है. टोटल यहां पे सेल्स में आपका कितना आ रहा है? 1241,000, जस्ट बिकॉज आपके पास कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है. 1241,000 शिफ्टेड ऑन द डेबिट साइड 1241,000. आपको क्या करना होगा? सारे डेबिट्स आपको माइनस करने होंगे. उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स माइनस COGS, दैट इज
आपका परचेज एंड परचेज रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे, जीपी विल अराइव टू 3,65,500। यहां पे हमने जीपी को डेबिट इफेक्ट दिया है. दिस जीपी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट आइटम आपको ये रखना होगा, बाय ग्रॉस 65,500. उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन दोनों को टोटल करके यहां पे दिखाना होगा. दिस टोटल कम्स टू 373500. उसके एग्जैक्ट सामने डेबिट साइड में इसको शिफ्ट कर देंगे 373500. सब कुछ माइनस करने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा, सेल्स में से परचेसेस माइनस किए थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था. इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने पर आएगा आपका नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, सब कुछ डिडक्ट करेंगे तो 1,68,000 नेट प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट है तो आपका यहां पे कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और नेट लॉस होता तो माइनस होता. नेट प्रॉफिट हाउ मच इट इज, 168,000. इन दोनों को आपको ऐड करना है. 468,000 लेस का मतलब क्या होता है, माइनस. इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4,50,000. नाउ योर बैलेंस शीट शुड टेली. ये 4,50,000 प्लस 2 प्लस 90 प्लस 30 कम्स टू 7,70,000. अब आपको क्या करना है, माइनस नहीं करना है, सारे असेट्स को हमें टोटल करना है. टोटल करने पर तुम्हारा आएगा 7,70,000. इज दिस क्लियर? ये टैलीड होना चाहिए. दोनों बाजू कितना आना चाहिए आपका, 7,70,000. इज दिस क्लियर? So, by this, on getting the correct total on both the sides of assets and liabilities, your sum gets tallied. And now, my dear students, your today's homework is question number 6, which I have taught you right now. Similar type of illustration is there, illustration number 24. Both these sums are to be done in your fair notebook. Thank you, students, and have a nice day.